Okay, yes, students. Now you are in second year. This is the third semester. Okay, in this semester, I will teach you the database management system. The subject name is DBMS, Database Management System. Okay, Database Management System, DBMS. The short form of the subject is DBMS. Okay, in the last semester, we had learned the web programming. Okay, web programming, that is used for web designing. We learned the HTML language, and then JavaScript and PHP in the last semester. Previous that we had learned the operating system subjects. Okay, the operating system, you know now what is operating system. Now, in this semester, we will learn about the database. Okay, we will learn about the database. Yes, screen visible, Anna. Screen is visible, na? Yes, ma'am. Okay. Yes. Now, this is again theory subject plus practical subjects. Okay. So in this semester, we have the theory plus practical also. Okay. Total 5 lectures will be there for the theory and 2 lectures for the practical. Okay. So this is in these subjects we have to do practical again. जैसे कि हमने last semester में किया. So you have to install the MySQL. I will tell you which software you have to install. Okay. Now I will give the basic introduction about the database subject. Okay. Database is not a programming. Okay. Database is used as a backend in the software. Okay. In the software, database is used as a backend to store the data. Database. Okay. To store the data. The main purpose of the subject is used to store the data. Okay, different types of data. In the last semester we had done the web programming. We had made the uh, registration form designing. Okay, but in that subject we had not stored any data. ठीक है, हम लोगों ने कोई डेटा स्टोर नहीं किया. हाँ, yes, in the last unit PHP, in the PHP we had seen the what is a database basic we had seen, but now in this subject we will learn in detail about the databases. So uh, here I am made some PPT for the basics. Okay, yes. What is data in these basics? Today we will cover these basic topics. What is data? What is database? What is database management system? Components of DBMS, application of DBMS, advantages of DBMS and disadvantages of DBMS. This subject, the use of this subject is used to store the data. Okay, how to store the data as a backend. For example, when you are sign up in some social sites or in any application, so your data will be stored. So where your data will be stored? Your data will be stored in database. Okay, for example, when you had created the your account in the Google, okay, in the Gmail, for example, Gmail, you have created your account. Then for the whenever you log in the Gmail, so you have to enter the username and password, same username and password as you have entered during the time of registration. Okay, if you will enter the wrong username and password, then you cannot be uh, login. Means you will get the message कि your username and password is wrong. Okay, so what is यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन आपने एंटर किया था एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेटा इज चेकिंग विद योर करंट इनपुट. जो आप करंट इनपुट डाल रहे हो यूजर नेम एंड पासवर्ड, वो चेक हो रहा है विद दी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था वो डेटा के साथ. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कंपेयर हो रहा है. ठीक है, चेकिंग हो रहा है कि जो यूजर नेम एंड पासवर्ड जो यू हैव एंटर इन दी टेक्स्ट बॉक्स, जो टेक्स्ट बॉक्स में डेटा डाल रहे हो वो करेक्ट है कि नहीं. तो वो कैसे करेंगे, विद दी डेटाबेस के साथ. ओके, मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे कि फ्रंट एंड जो आपने क्रिएट किया है, जो फ्रंट एंड यू हैव क्रिएटेड, डिजाइनिंग यू हैव क्रिएटेड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डिजाइनिंग किया, वो लैंग्वेज को आप क्या कर रहे हो, यू आर कनेक्टिंग विद द डेटाबेस. किसके साथ कनेक्ट करे हो, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करे हो. एंड ऑल दी डेटा जो है आपका वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, डेटाबेस में. सो डेटाबेस इज यूज्ड एज अ बैक एंड मतलब पीछे हम लोग उसको यूज करते हैं. ठीक है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज अ फ्रंट एंड. ओके, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है दैट इज अ फ्रंट एंड. वाई फ्रंट एंड? बिकॉज वी आर डिजाइनिंग इन दैट लैंग्वेज, हम लोग उसमें डिजाइनिंग कर रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट में या तो PHP में तो HTML हमने डिजाइनिंग किया, दैट इज फ्रंट एंड लैंग्वेज. वाई? बिकॉज यूजर को क्या दिख रहा है,
आपका जो डिजाइनिंग जो आपने किया है, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, रेडियो बटन, जो रजिस्ट्रेशन पेज यू हैव क्रिएटेड दैट इज सेम टू द यूजर्स, तो वो फ्रंट एंड हो गया। यस, एंड जो यूजर जो डेटा डाल रहा है, फॉर एग्जांपल आपने कोई इफ यू आर मेकिंग सम रजिस्ट्रेशन पेज, तो उसमें यूजर जो डेटा डाल रहा है, नेम, पासवर्ड, तो ऑल डेटा विल बी स्टोर्ड इन दी डेटाबेस, वो डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, तो यूजर को वो नहीं दिखेगा, ठीक है। यूजर कैन नॉट सी इन दी डेटाबेस। यूजर मतलब क्या, जो वेबसाइट्स है, तो एप्लीकेशंस जो भी यूज कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर्स। तो यूजर कैन नॉट सी द डेटाबेस, यूजर डेटाबेस को नहीं देख सकता। यूजर को, फॉर एग्जांपल जब आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें मुंबई यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो आपका जो भी डेटा है, तो ऑल डेटा विल बी स्टोर्ड इन दी डेटाबेस। तो आपको नहीं दिख रहा है कि डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, आपको तो ओनली क्या दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, यू कैन सी ओनली रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जिसमें एंटर योर नेम, या तो पासवर्ड, या तो फिर आपका एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, वो सारा डेटा आपको दिख रहा है। मतलब यू कैन सी ओनली फ्रंट एंड। ओके, डिजाइनिंग आप लोग देख सकते हो, ठीक है, बट जो डेटा आप लोग डाल रहे हो सबमिट बटन पे, व्हेन यू विल क्लिक ऑन द सबमिट बटन, तो ऑल द डेटा विल बी स्टोर्ड इन समवेयर। ओके, तो समवेयर मतलब कहाँ पे स्टोर हो रहा है, वो डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, तो यूजर डेटाबेस को नहीं देख सकता, ठीक है। डेटाबेस को कौन हैंडल करता है, तो प्रोग्रामर, ठीक है, जिसने वेबसाइट्स बनाया या तो जिसने एप्लीकेशंस बनाया है, ही और शी कैन यूज दी डेटाबेस, वो उसको हैंडल करेगा, ठीक है। तो बेसिक हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, व्हाट इज डेटा, डेटाबेस क्या है, देन यू विल गेट द क्लियर आइडिया, ठीक है। तो ऐसे मत करो कि नहीं एक ही दिन में समझ में आएगा। यस, माय वॉइस इज ब्रेकिंग। थोड़ी थोड़ी लैगिंग हो रही है। हो रहा है क्या, वेट, चेकिंग। ओके, ओके, तो क्लियर है, ओके, ठीक है, चलो। हाँ, तो धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। एक ऐसे नहीं है कि एक ही दिन में यू विल गेट द आइडिया अबाउट दिस सब्जेक्ट, ओके। एक एक हम लोग रोज थोड़ा थोड़ा टॉपिक वी विल क्लियर, स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न, सो यू विल गेट द क्लियर आइडिया व्हाट इज डेटाबेस, ठीक है। एकदम से नहीं समझ में आएगा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम समझने में आपको टाइम लगा था, सेम वैसे ही आपको ये सब्जेक्ट समझने में यू विल रिक्वायर सम मोर टाइम, ओके। जैसे हमने वेब प्रोग्रामिंग किया तो आपको एक दिन में ही समझ में आ रहा था, यस, कि ये करने से ये हो रहा है, ये करने से ये हो रहा है, तो ये कमांड टाइप किया फिर डिजाइनिंग हो रहा है, ठीक है। तो दैट सब्जेक्ट डिफरेंट, दैट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, तो आपको इजीली समझ में आ गया। बट दिस इज अगेन थियरी सब्जेक्ट है, ओके। प्रैक्टिकल भी है, थियरी भी, बट थियरी थोड़ा ज्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लियर ऑल दी कंसेप्ट, ठीक है, ऑल थियरी कंसेप्ट हमको क्लियर करना होगा, देन आफ्टर यू कैन डू दी प्रैक्टिकल्स, तो थोड़ा टाइम लगेगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग वी विल कवर ऑल दी टॉपिक्स। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क एनी टाइम, ठीक है, आप कभी भी मुझे पूछ सकते हो कि मैम ये क्या है, बट आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। यस, व्हाट इज डेटा, द फर्स्ट इज व्हाट इज डेटा, ओके। हमारा सब्जेक्ट है, आवर सब्जेक्ट नेम इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेटा, डेटा क्या है, ओके। हमको डेटा स्टोर करना है, बट व्हाट टाइप ऑफ डेटा, व्हाट इज डेटा, ओके। what is data, the data is a collection of distinct unit of information, okay. Data is known as raw facts, okay. For example, हमको बोला गया है कि कलेक्ट दी स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट का डेटा हमको कलेक्ट करना है, तो हम लोग क्या डेटा कलेक्ट करेंगे आप लोगों का, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम, ओके, स्टूडेंट 10th परसेंटेज क्या है, 12th परसेंटेज क्या है, देन सेमेस्टर 1 में क्या मार्क्स है, देन स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, डेटा, ओके। ये सब क्या हो गया, डेटा, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करें, ठीक है। जो हम डेटा कलेक्ट करें उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा। नाउ एज अ आईटी स्टूडेंट आपको भी पता होगा व्हाट इज डेटा। फॉर एग्जांपल गूगल फॉर्म से हम लोग आपका एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल हम लोग गूगल फॉर्म से आपका कलेक्ट अटेंडेंस लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज अटेंडेंस, अटेंडेंस इज वन टाइप ऑफ डेटा, वी आर कलेक्टिंग द यूजर नेम, यूजर रोल नंबर, ठीक है, वो प्रेजेंट है कि नहीं, तो वन टाइप ऑफ दैट इज क्या हो गया, डेटा, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल नेम, एज, वेट, हाइट, प्राइस, सैलरी एक्सेट्रा आर दी डेटा, ये क्या हो गया, डेटा। There is a difference between data and information, students, okay, that is a difference between data and information में difference है, कोई मुझे बताएगा what is the difference between data and information, anyone can say what is the difference, क्या है data and information में, yes सरफराज, yes सरफराज बताओ।
मैम डेटा में रो एंट्री क्रिएट होता है, डेटा में रो एंट्री क्रिएट होता है। ओके, सरफराज ने आंसर दिया इंफॉर्मेशन इज ग्रुप ऑफ डेटा। यस, ओके, वी कैन से कि इंफॉर्मेशन इज अ ग्रुप ऑफ डेटा। इंफॉर्मेशन मतलब क्या, व्हेन वी आर प्रोसेसिंग ऑन द डेटा, ठीक है, व्हेन वी आर प्रोसेसिंग ऑन द डेटा तो वी विल गेट दी सब डिटेल इंफॉर्मेशन, तो वो हमारा क्या हो गया, इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल एज, ठीक है, एज इज अ डेटा, ठीक है, एज इज अ डेटा, बट व्हेन वी आर प्रोसेसिंग ऑन दिस डेटा, जब हम उसको प्रोसेस करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग करेंगे उस पर कैलकुलेशन करेंगे, यस के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स अबव 18 है, कितने अब अंडर 18 है, ठीक है, तो वो क्या हो गया कि हमने उस पर कुछ प्रोसेसिंग किया, वो डेटा पे वी आर प्रोसेसिंग सम, कुछ हम उस पर प्रोसेसिंग करें, तो जो आउटपुट हमको मिलेगा वो हमारा क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, ठीक है, तो पेट्रोल प्राइस इसे क्या हो गया, आपका डेटा हो गया। यस, कोहिनूर, यस, when you process the data, correct, okay, yes, surprise collectively carries logical meaning, yes, good, ठीक है। तो when we are processing the data तो we will get the information, हमको क्या मिलता है, सब information मिलता है, okay। फॉर एग्जाम्पल प्राइस, पेट्रोल प्राइस, ठीक है, तो पेट्रोल का प्राइस आज क्या है 70, तो ओनली 70, तो वो क्या हो गया, ओनली डेटा, बट यस वी विल प्रोसेसिंग ऑन दैट डेटा। फॉर एग्जाम्पल लास्ट 5 ईयर्स में कितना प्राइस जो था पेट्रोल का वो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, अभी करंटली क्या है, अगर उसको हम लोग कुछ प्रोसेसिंग कर, उसका हम लोग डिटेल स्टडी जब हम लोग कर रहे हैं तो विल गेट द इंफॉर्मेशन, ओके। यस, जय कुमार, इंफॉर्मेशन कांट एग्जिस्ट विदाउट डेटा बट डेटा डजंट डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन, यस, गुड, ओके। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ओके। Yes, now next, okay, now you cleared what is data, okay, so as in a one line you can remember what is data. Data is known as raw facts, okay, you can say it is a raw facts, okay, you can say it is a raw fact. Yes, Purnima, data is fact, information is data with exact meaning, yes, ये भी हम लोग बोल सकते हैं, very good, okay. Now next is what is database, okay, what is database. The database is an organized collection of structured data, ठीक है, the database is an organized collection of structured data, okay, मतलब जो data हम लोग collect किया है उसको हमको क्या करना है, properly उसको store करना है, ठीक है, organized करना है, okay। structured data, कोई भी data नहीं, structured data, ठीक है। For example, library contains a huge collection of books of different genres. Here the library is database and books are the data. ओके, फॉर एग्जाम्पल जब लाइब्रेरी में जाते हो तो बहुत सारे बुक्स वहाँ पे है, तो उसको प्रॉपरली अरेंज किया है, ठीक है। अगर आपने लाइब्रेरी देखा होगा, आई थिंक आपने ये सेमेस्टर, ये फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट ने नहीं देखा होगा क्योंकि आप कॉलेज ही नहीं गए, बट ये स्कूल का लाइब्रेरी अगर होगा तो आपने देखा होगा कि इन द लाइब्रेरी देयर आर सो मेनी बुक्स आर देयर, बट उसको प्रॉपरली अरेंज किया हुआ है। स्कूल का लाइब्रेरी देखे तो ये फिजिक्स का अलग होगा कि जहाँ पे फिजिक्स का सेक्शन अलग होगा जिसमें फिजिक्स का बुक होगा, देन अनदर सेक्शन इज फॉर दी बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का जो है उसमें सेक्शन में बायोलॉजी का ही बुक्स होगा, ठीक है। तो कॉलेज में भी बीकॉम है तो बीकॉम के लिए अलग सेक्शन है कि उसमें ओनली बीकॉम्स का बुक है, ठीक है। अनदर इज आईटी, आईटी का सेक्शन है तो आईटी में ओनली आईटी का ही बुक्स होगा, तो आईटी में भी रेफरेंस बुक्स अलग किया हुआ है, ठीक है। मतलब डेटा को क्या किया हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ है, डेटा को क्या किया है, ऑर्गेनाइज्ड किया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेसिस, डेटाबेस, ओके। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। बुक्स तो बहुत सारा लाइब्रेरी में, बट हम लोग कोई भी बुक्स कहाँ पे भी स्टोर नहीं करेंगे। लाइब्रेरियन, व्हाट द लाइब्रेरियन विल डू, द लाइब्रेरियन क्या करेगा, उसको पहले डिफरेंशिएट करेगा अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, देन रेफरेंसेस वाइज, देन क्लासेस वाइज, एफ आई एस वाई टी वाई, ठीक है। तो वो प्रॉपरली मीन्स whenever you will go to the library तो you will find the books easily, ठीक है। आपको आपको आईटी का बुक चाहिए तो आप आईटी सेक्शन में ही जाओगे, आप फिर बीएमएम या तो कोई आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मेरा बुक कहाँ है, ठीक है। तो अगर आपको बुक चाहिए तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली आईटी सेक्शन में जाओगे और वहां से आप बुक लेके आ जाओगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, और डेटाबेस, ठीक है। तो ये जो लाइब्रेरी का एग्जांपल दिया है, दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हमको। हम लोग किसमें पढ़ेंगे, डेटाबेस इन दी सॉफ्टवेयर में, ठीक है। ये जो लाइब्रेरी है दैट इज आपका आपको समझने के लिए दिया है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ सॉफ्टवेयर हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है दैट वी विल स्टोर इन दी सम सॉफ्टवेयर। डेटाबेस बनाने के लिए भी सॉफ्टवेयर है, कौन से सॉफ्टवेयर है, वी विल लर्न इन दी नेक्स्ट स्लाइड, ओके।
In short, what is database? So database is organized collection of structured data. What is data? Data is raw fact. Okay, what is data? Data is raw fact. What is database? What is database? So database is an organized collection of structured data. Okay, you should know the all the definitions. ठीक है, जो definitions है आपको concept याद रखना है students. Okay, ये मैं again I am repeating, this subject is not like previous जो हमने web programming पढ़ा उतना easy नहीं है. ठीक है, आपको subject को थोड़ा seriously लेना पड़ेगा. In the first lecture से you have to clear all the concepts. सारे concept related है. What is data? Then what is database? Next time what is database management? ठीक है, तो ये जो टर्म्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको इट शुड बी क्लियर. ठीक है, सारे टर्म्स आपको क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए. ओके, तो डेटा क्या हमने देखा विद एग्जांपल के साथ. व्हाट इज डेटाबेस? दैट also we had seen the database is organized collection of structured data. Organized collection, database is organized collection. Okay, yes. Now what is DBMS? What is DBMS? Database management system. What is database? We know. अभी database क्या हमको पता चल गया क्योंकि organized collection of the data. ठीक है, डेटा को पर्टिकुलर अच्छे से ऑर्गेनाइज, उसमें उसको ऑर्गेनाइज कर, डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना, स्टोर करके रखना, उसको हम लोग क्या बोला? डेटाबेस. नाउ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पीछे क्या आ गया? मैनेजमेंट सिस्टम. डेटा हम लोगों ने कवर किया है, डेटाबेस देखा. नाउ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, database management system is a systematic way, okay, is a systematic way of storing, organizing, updating and removing the data. Okay, now manage करना, जो डेटा हमने स्टोर किया है जो ऑर्गेनाइज वे में, डेटाबेस में जो हमने डेटा स्टोर किया है जो ऑर्गेनाइज वे में, उसको क्या करना है? नाउ वी विल मैनेज दैट डेटा. इसीलिए इसको क्या बोला है? मैनेजमेंट सिस्टम. क्लियर? मैनेजमेंट सिस्टम. व्हाट इज द मैनेजमेंट? मतलब क्या? जो डेटा हमने स्टोर किया है उसको अपडेट करना, उसको इंसर्ट करना, मॉडिफाई करना, ऑर्गेनाइज करना, रिमूव करना, इट्स कॉल्ड द मैनेजमेंट. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सिस्टमेटिक. यस, मीट द माइक्रोफोन. इसका माइक्रोफोन ऑन है. यस, okay. So database management system, what is the meaning of database management system? Managing the data. Okay, data को manage करना, but कैसे manage करना? Systematic way में manage करना. What is the meaning of manage? मतलब जो data we are storing the data in the database, तो वो data को suppose we want to change that data. ओके, हमको डेटा चेंज करना है, मतलब कुछ अपडेट करना है, उसमें मॉडिफाई करना है, कोई स्टूडेंट का फोन नंबर वगैरह, या तो इफ यू वांट टू डिलीट द डेटा, आपको डेटा डिलीट करना है, ठीक है, कोई न्यू डेटा आपको उसमें इंसर्ट करना है, तो ये सब क्या हो गया? मैनेजमेंट ऑफ द डेटा. फॉर एग्जांपल, आपने आपका प्रोफाइल क्रिएट किया इन द एफबी में या तो कोई जीमेल में, तो यू कैन चेंज दैट. आप उसको चेंज कर सकते हो ना. ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बार जो यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया तो कोई फोन नंबर कुछ भी, वॉट एवर डेटा यू वांट टू चेंज, तो यू कैन चेंज. जीमेल बोलो या तो कोई भी एप्लीकेशन में जिस ऑनलाइन आप जहाँ पे भी आपका डेटा स्टोर है, ठीक है, यू कैन चेंज योर डेटा. ओके, तो वो चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्या करता है? हमको अलाउ करता है फॉर इंसर्टिंग न्यू डेटा, फॉर डिलीटिंग या तो अपडेटिंग के लिए हमको अलाउ करता है. ठीक है, तो आपने अगर कोई अकाउंट क्रिएट किया है तो यू कैन चेंज योर पासवर्ड. ओके, यू कैन चेंज योर बेसिक डिटेल्स, यू कैन चेंज योर फोन नंबर्स वगैरह, यू कैन चेंज. ओके, तो डीबीएमएस मतलब क्या? इट इज सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग. स्टोरिंग मतलब क्या? डेटा स्टोर करना. ओके, फॉर एग्जांपल आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करो तो आपका डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है. देन ऑर्गेनाइजिंग, जो डेटा आपने स्टोर किया है, ठीक है. फॉर एग्जांपल मुंबई यूनिवर्सिटी का साइट पे आप कुछ एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करो तो सारे स्टूडेंट्स फिल कर रहे हैं, ठीक है. तो स्टोरिंग मतलब आपने जो डेटा इंसर्ट कर रहे हो, सबमिट कर रहे हो, द डेटा विल बी स्टोर्ड इन दैट डेटाबेस. ऑर्गेनाइजिंग मतलब बहुत सारे स्टूडेंट है, सारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है, जो डेटा बैकएंड में स्टोर हुआ है उसको ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करना, ठीक है. फॉर ऑल द स्टूडेंट को एक ही रजिस्ट्रेशन पेज दिखेगा, बट जो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट है, उसका डेटा बैकएंड में कैसे स्टोर होगा? अलग अलग टेबल में स्टोर होगा. कैसे स्टोर होगा? वी विल लर्न, ठीक है, हम लोग देखेंगे उसको डिटेल्स में देखेंगे. बट ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या? जो डेटा डेटाबेस में स्टोर हो रहा है उसको ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, ठीक है, उसको क्या करना? अरेंज करना. Yes, my voice is not clear, students. Go. गौरी Yes, ma'am. निशाद Clear, ma'am. क्लियर है ना? And clear है. हाँ, गौरी निशाद आप आपका चेक करो इंटरनेट कनेक्शन.
यस गौरी निशात, चेक द इंटरनेट एट योर साइड। आई थिंक आप वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे बरोबर है। ओके ओके, तो ऑर्गेनाइज मतलब क्या, अरेंज करना। ओके, ऑर्गेनाइज मतलब क्या, अरेंज करना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग डेटा है, अलग अलग कैटेगरीज वाला डेटा है, तो उसको अलग अलग जगह पे स्टोर करना। ठीक है, वी विल लर्न, हम लोग देखेंगे। आप उस विद एग्जांपल के साथ जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो यू विल गेट द आइडिया व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। अभी के लिए याद रखो, ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, अरेंज करना। अपडेटिंग, अपडेट मतलब चेंज करना। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपडेटिंग, चेंज करना। एंड रिमूविंग मतलब उसको डिलीट करना। ओके, तो DBMS is a systematic way of storing, organizing, updating and removing the data, database management system. Okay, फॉर एग्जाम्पल एक्सेल, आप एक्सेल में आपका डेटा स्टोर करते हो, ठीक है, बट एक्सेल इज नॉट अ डेटाबेस। ओके, ये स्टूडेंट, एक्सेल इज नॉट अ डेटाबेस, एक्सेल डेटाबेस नहीं है, बट आप उसमें डेटा स्टोर करके रखते हो। ओके, तो सेम वैसे इन द DBMS डेटाबेस में वी विल क्रिएट द टेबल्स, इन द टेबल वी कैन स्टोर द डेटा, वी कैन अपडेट द डेटा, वी कैन रिमूव द डेटा। ठीक है, और देन हम लोग टेबल्स को ज्वाइंस भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, बट एक्सेल डेटाबेस नहीं है। जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जो एक्सेल में हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल इज यूज फॉर स्टोरिंग दी डेटा, बट एक्सेल इज नॉट डेटाबेस। सेम वैसे ही डेटाबेस के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कि जिसमें हम लोग हमारा डेटा बेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, DBMS इज अ सॉफ्टवेयर। ओके, व्हाट इज DBMS? इट इज अ सॉफ्टवेयर। okay, DBMS is a software for storing and retrieving the users data with appropriate security measures. ओके, आपका जो डेटा आप लोग सब साइन अप करते हो या कोई ऑनलाइन साइट्स में आपका डेटा स्टोर करते हो, तो आपका डेटा सिक्योर होता है। ओके, तो दैट इज द फीचर ऑफ DBMS। DBMS क्या प्रोवाइड करता है? सिक्योरिटी। ओके, मतलब कोई भी किसी का डेटा कैन नॉट अपडेट। ठीक है, ओनली यू कैन अपडेट योर डेटा, तो दैट इज अ सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी भी वो प्रोवाइड करता है। इट इज अ सॉफ्टवेयर, DBMS is a software. Okay, DBMS is a software for storing and retrieving the users data। डेटा यूजर का डेटा हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड रिट्राइव मतलब उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, रिट्राइव। ओके, हम लोग उसको रिट्राइव, फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन शॉपिंग का साइट यूज कर रहे हो, तो अगर इफ यू आर लॉग इन विथ योर अकाउंट, आपने आपका अकाउंट को लॉग इन किया है, ठीक है, देन कार्ट वहाँ पे होता है, तो अगर आपने 2 days पहले उसमें कार्ट में आपका कुछ आइटम्स ऐड करके रखा होगा, तो आफ्टर 2 days आप उसको कार्ट को देख सकते हो, तो ओनली यू कैन सी द योर कार्ट इन्फॉर्मेशन कि आपने कार्ट में क्या ऐड करके रखा है। ठीक है, तो दैट इज अगेन डेटाबेस। वो क्या है? डेटाबेस। आपका जो डेटा जो है वो स्टोर है डेटाबेस में, तो ओनली यू कैन सी योर डेटा। अब उसको रिट्राइव मतलब क्या है? उसको रिटर्न करना। सी, अब कार्ट को इन्फॉर्मेशन चेक करते हो कि मैंने कितना आइटम्स इसमें ऐड करके रखा है, अभी आपने उसको परचेज नहीं किया है, ओनली यू हैव ऐड इन योर कार्ट, अपने कार्ट में ऐड करके रखा है। ठीक है, तो आप उसको देखना है तो यू कैन सी एनी टाइम योर कार्ट। ठीक है, तो वो क्या हो गया? रिट्राइविंग डेटा, क्या आप उसको देख सकते हो, डेटा यूज रिटर्न कर सकते हो। For example, college database. This database maintain information related students, courses, grades, etc. ठीक है, for example, in our college, college database है, college के लिए particular हमने database बनाया है जिसमें हमारे college का ही student जो उनका data store होगा। Okay, so that is a database। देखेंगे हम लोग, स्लोली स्लोली जाएंगे, सो डोंट वरी। अभी भी रिपीट कर रही हूँ, आपको एक उसमें सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है, वी विल लर्न स्लोली स्लोली विद एग्जांपल। हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जस्ट अभी डेफिनेशंस जो है, कंसेप्ट्स जो है वो याद रखो। ठीक है, सम सॉफ्टवेयर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर डेटाबेस आर SQL, ओरेकल, फॉक्सप्रो, माई ऑल आर दी सॉफ्टवेयर्स। ये सारे क्या है? सॉफ्टवेयर डेटाबेस यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सी का लैंग्वेज करते हो तो यू हैव टू इंस्टॉल टर्बो सी। ठीक है, आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ता है? टर्बो सी यू हैव टू इंस्टॉल। क्लियर? तो टर्बो सी क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया कि आपको प्रोग्रामिंग करना है तो यू हैव टू इंस्टॉल टर्बो सी। सेम वैसे ही इफ यू वांट टू क्रिएट डेटाबेस, इफ यू वांट टू यूज द डेटाबेस, तो यू हैव टू इंस्टॉल सम सॉफ्टवेयर। आपको सम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर अवेलेबल है? ओरेकल है, SQL है, फॉक्सप्रो है। नाउ फॉक्सप्रो इज आउटडेटेड, ये हमारे टाइम पे था, मतलब 2005-6 में ये यूज होता है। अभी फॉक्सप्रो को यूज नहीं करता है। माई एसक्यूएल है, तो वी विल यूज दी माई एसक्यूएल। ठीक है, हम लोग क्या कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए? माई एसक्यूएल। ठीक है, तो वी विल यूज दी माई एसक्यूएल। कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसमें प्रैक्टिकल करना है, आई विल टेल यू। ठीक है, तो अभी के लिए याद रखो, द डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल फॉर यूजिंग और फॉर क्रिएटिंग द डेटाबेस। दैट आर एसक्यूएल है, ओरेकल है, माई एसक्यूएल है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करेंगे। what is the database management system? The database management system is a software, it is a, in that software
we can store the data, we can organize data, we can update, and we can remove the data. Okay, so that is a definition of database management system. Database is a raw fact, sorry, data is a raw fact. Database is a organized collection of the data, and database management system मतलब क्या, systematic way of storing, organizing, and removing the data. So this is a definitions for data, database, and database management system. And DBMS is a software. Okay, DBMS database management system जो हम लोग यूज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, इट इज अ सॉफ्टवेयर. क्या है वो? सॉफ्टवेयर है, ठीक है. एंड विच सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस? एसक्यूएल, ओरेकल, फॉक्सप्रो एंड माई एसक्यूएल. ठीक है, फॉक्सप्रो इज ऑल्सो डेटाबेस, बट अभी हम लोग यूज नहीं करते, मार्केट में अभी वो नहीं चलता है. अभी माई एसक्यूएल है, ओरेकल, उस पर काम हो रहा है. बट यू नो कि फॉक्सप्रो इज ऑल्सो सम डेटाबेस है वो. ठीक है, क्लियर? नाउ अप टू दिस क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, data, database, and database management system. Okay, now components of DBMS. ठीक है, sorry, components of DBMS. Okay, a DBMS consists of the 5 components that help in the use and management of data in organization. ठीक है, yes, what is the use of DBMS? database कहाँ पे use होगा? Yes, कोई मुझे बोल सकता है where we can use the DBMS? DBMS का use कहाँ पे हो सकता है? Now you know what is the DBMS. DBMS मतलब क्या? डेटा को सिस्टमेटिक वे में स्टोर करना, अपडेट करना, डिलीट करना. ठीक है, बट कहाँ पे डेटाबेस कहाँ पे यूज होगा? प्रैक्टिकल्स उसका मुझे एप्लीकेशन बता सकते हो? रियल टाइम एप्लीकेशन कोई मुझे बताएगा कहाँ पे स्टोर होता है डेटाबेस, कहाँ पे यूज होता है डेटाबेस? यस, कॉलेज, कंपनी, यस, बिजनेस, यस, वेरी गुड. ओके, तो जहाँ पे भी हमको डेटा स्टोर करना है, ठीक है, at that time DBMS will be used. For example, in colleges में हम लोग क्या करते हैं? डेटाबेस हम लोग क्रिएट करते हैं. Why? For storing the user students data. बैंक में भी क्या होता है? डेटाबेस यूज होता है. ठीक है, why? For storing the customer information. Yes, इरशाद, बैंक. ओके, स्कूल्स में भी स्टूडेंट का डेटा स्टोर करने के लिए हर एक जगह पे, ठीक है, इन ईच एंड एवरी. नाउ अभी तो सब सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन है, तो ईच एंड एवरी प्लेस नाउ जो हमारा DBMS वो यूज होता है. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स मैंने बताया डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, दैट यूज हम लोग उसमें डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल द सम मेजर एरियाज ऑफ एप्लीकेशंस आर बैंकिंग, एयरलाइंस, फाइनेंस, सेल्स, HR मैनेजमेंट, ऑल आर द एप्लीकेशंस. ठीक है, ये बेसिक्स, ये थोड़ा ये एग्जांपल दिया है, बट नाउ एवरीवेयर अभी क्या यूज होता है? कॉलेजेस में भी डेटाबेस यूज होता है, यूनिवर्सिटीज जो है, यूनिवर्सिटीज में भी डेटाबेस में यूजर का डेटा स्टोर करता है. हर एक जगह पे डेटा स्टोर करने की जरूरत है, तो वहाँ पे अभी क्या यूज होता है? DBMS. ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. बिफोर दी DBMS, सबसे उस DBMS से पहले हम लोग डेटा किस में स्टोर करते थे? सिंपल फाइल्स में. ओके, जिसमें हम लोग स्टोर करते थे फाइल्स. फॉर एग्जांपल वर्ड फाइल या तो नोटपैड फाइल या तो कोई भी और फाइल जिसमें हम लोग डेटा स्टोर करके रखते थे. बट उसका सम डिसएडवांटेजेस है फाइल सिस्टम का. तो वो क्या डिसएडवांटेजेस हम लोग पढ़ेंगे इसमें. ठीक है, पहले अभी बेसिक देखते हैं हम लोग. यस, कंपोनेंट्स ऑफ DBMS. तो DBMS मेन कंपोनेंट्स क्या है? डेटाबेस जब हम लोग यूज करते हैं तो विच आर द मेन कंपोनेंट्स? ओके, द फर्स्ट वन इज डेटा. ओके, द मेन कंपोनेंट क्या है डेटाबेस का? डेटा. ठीक है, वाई डेटा? बिकॉज विदाउट डेटा वी कैन नॉट यूज द डेटाबेस. तो डेटाबेस हम लोग क्यों यूज करते हैं? फॉर स्टोरिंग द डेटा. तो द मेन कंपोनेंट ऑफ DBMS क्या है? डेटा. Data is a main component. The second is hardware. The second component is hardware. Okay, to use the database, database use करने के लिए हम, database is a software. We know database is software. मैंने आपको यहाँ पे बताया कि database software है. database software use करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? Sorry, database use करने के लिए we have to install Oracle, MySQL या तो SQL software we have to install. तो database software है, but वो software हम लोग कहाँ पे install करेंगे? some system we require. Okay, we require some system, laptop, computers, कुछ भी हमको कोई system हमको लगेगा. So that is hardware. So without hardware we cannot use the DBMS. So again, hardware and software, these are the main components of DBMS. If you want to use DBMS, तो first of all आपको क्या चाहिए? System चाहिए, लैपटॉप चाहिए या तो डेस्कटॉप या तो कंप्यूटर, कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल है वो हार्डवेयर है.
देन आफ्टर उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे डेटाबेस रिलेटेड, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ओरेकल, जो आपको इंस्टॉल करना है वो इंस्टॉल करोगे. तो सॉफ्टवेयर इज एंड हार्डवेयर बोथ आर द important components of DBMS. Then user. Okay, then next मेन कंपोनेंट कौन सा है, यूजर. डेटा हमारे पास है, हार्डवेयर हमारे पास है, सॉफ्टवेयर हमारे पास है, बट यूजर्स नहीं है. यूजर्स नहीं है तो डेटाबेस कौन हैंडल करेगा, या तो फिर किसका डेटा स्टोर होगा. ओके, तो यूजर्स आर अगेन मेन कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस. ओके, बट यूजर्स मतलब क्या, जो डेटाबेस यूज करे. ओके, और जो डेटाबेस को हैंडल कर रहा है, ऑल आर दी यूजर्स. जो डेटाबेस को यूज कर रहा है वो भी यूजर हो गया, जो डेटाबेस को हैंडल करेगा. ठीक है, मतलब नॉट एवरीवन कैन यूज द डेटाबेस. अब आपको पता है जब हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, देन आफ्टर यू कैन यूज द डेटाबेस, बट बीएमएम स्टूडेंट या तो बीकॉम स्टूडेंट कैन नॉट यूज द डीबीएमएस. ठीक है, तो ओनली जो स्किल स्किल्ड पर्सन कैन यूज दी डेटाबेस. डेटाबेस को स्किल्ड पर्सन ही यूज कर सकते हैं, जिसको पता है हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, हाउ टू यूज डेटाबेस, वही यूजर्स डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, बाकी एवरीवन क्या करेगा, डेटा उसको यूज करेगा. एंड प्रोसीजर. ओके, एंड द नेक्स्ट लास्ट कंपोनेंट क्या है, प्रोसीजर. व्हाट इज अ प्रोसीजर. प्रोसीजर मतलब क्या, हाउ टू इंसर्ट डेटा. मैंने बोला व्हाट इज डीबीएमएस, इट इज सिस्टमेटिक वे ऑफ क्रिएटिंग स्टोरिंग, बट हाउ टू स्टोर डेटा. Okay, how to store the data, how to delete the data, how to update the data. तो there is a particular language है. ठीक है, MySQL जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें SQL लैंग्वेज है कि थ्रू विच दैट लैंग्वेज वी कैन insert data, we can update data. insert के लिए, update के लिए we will write the some commands. Okay, so procedure. तो procedure is important. without procedure, अगर procedure नहीं पता है, how to use database, how to store database, tables कैसे create करना है, data कैसे insert करना है, how to modify, update, वो अगर आपको नहीं पता है तो you cannot use the DBMS. So these are the main 5 components of DBMS. अगर आपको if you want to use DBMS तो ये these are the 5 basic components. Okay, data, hardware, software, users and procedure. Okay, data, raw facts, hardware, software, users and procedure. Okay, procedure मतलब क्या, डेटाबेस एसक्यूएल लैंग्वेजेस है, डेटाबेस का भी लैंग्वेजेस है. अगर वो लैंग्वेज आपको पता है देन एंड ओनली देन यू कैन यूज द डेटाबेस. अगर आपने एसक्यूएल इंस्टॉल कर लिया बट आपको पता ही नहीं है कि हाउ टू यूज माई एसक्यूएल, उसको माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर जो उसको यूज कैसे करना है, टेबल कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसको अरेंज करना है, हाउ टू कनेक्ट दी टेबल, डेटा कैसे रिट्राइव करना है फ्रॉम दैट टेबल, अगर आपको नहीं पता यू कैन नॉट यूज दी डेटाबेस. आपके पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, यूजर्स हैं, डेटा है, बट आपको पता ही नहीं है कि हाउ टू यूज दैट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है, आपको प्रोसीजर ही नहीं पता है, दैट यू कैन नॉट यूज दी database. So these are the main 5 components. without अगर इसमें से एक भी कंपोनेंट नहीं है तो we cannot use the database. हम लोग डेटाबेस यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर्स एंड प्रोसीजर्स. ओके, ये स्टूडेंट प्लीज रिजॉइन. ओके, रिजॉइन करो, थोड़ा सा एक और टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, तो प्लीज रिजॉइन. एप्लीकेशंस ऑफ डीबीएमएस. तो ये मैंने आपको देखा, डीबीएमएस इज अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम. उसको अनदर नेम दिया है, डीबीएमएस इज अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम. ठीक है, हम लोग डेटा स्टोर करके रखते हैं, बट कहाँ पे, रिकॉर्ड्स मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन, डेटा हम लोग स्टोर करके रखते हैं. कंप्यूटराइज्ड, ओके, मतलब सॉफ्टवेयर में हम लोग हमारा डेटा जो है वो स्टोर करके हम लोग रखते हैं. तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, डीबीएमएस इज अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम. applications, some of the major areas of applications are as follow. ये अब मैंने आपको बताया, and आपको भी पता है now where the database can use banking, airline, finance, sales, HR management, and in many areas the database will be used. Okay, so these are the applications of DBMS, database management system.